class 10th, chapter 15, probability. Okay, and this is the third video. Now, as I've already explained you about the probability, the formula of probability, the maximum and minimum value of the probability, that is 0 to 1. The minimum value of probability is 0 and the maximum value of the probability is 1. Okay, if I'm writing some important points here. Okay, P of E, मतलब probability of happening of event E is equals to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, the second formula is probability impossible event. कोई impossible event आपके पास है तो उसकी probability 0 होगी. Third, if a fixed event is there or certain event is there, certain event, then the probability of certain event is equals to 1. Next point, the sum of probability of event E. Okay, the probability of event E, the happening of probability of event E and not happening of probability of event E is equals to 1. Okay, and P of E, the minimum value of probability is 0 and the maximum value is 1. And now the important formula is the sum of the probabilities, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Of an experiment is 1. Okay. A question है. The question is that a bag contains 3 red balls, 4 white balls, and 5 green balls. Okay, a ball is drawn at random. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. Find the probability of getting. Find the probability of getting. तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, है ना. फर्स्ट, a red ball. Second, a white ball. Third, a green ball. Fourth, a green or white ball. Fifth, a green and white ball. Sixth, not a green ball. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये सोल्व करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू टू डू, जस्ट आइडेंटिफाई the number of sample space. Okay, so how many balls are there in total? So there are 3 red plus 4 white plus 5 green. So 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. That is 12 balls total are there. Okay, now so number of sample space is 12 here. Now number of red balls 3, number of white balls is 4, number of green balls is 5. Now as you find the probability of getting a red ball, the probability of E is equals to N of E upon N of S. So N of E here is, sorry, N of E, not N of E, N of R. Okay,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, number of red balls upon total number of balls. So here the number of red balls is 3 and total number of balls is 12. So answer is 1 by 4. Okay, next question. A white ball. Okay, so probability of getting a white ball is P of W, which is equals to number of white balls upon total number of balls. So number of white balls here, number of white balls here are 4 and total number of balls are 12, so 1 by 3 is the answer. Okay, now next, a green ball. So P of G, that is number of green balls upon total number of balls. Okay, number of green balls are 5 upon 12, which cannot be simplified further. Now a green or white, that means probability of getting a green or white ball, that is number of green or white upon number of total number of balls. तो ग्रीन और व्हाइट, या तो ग्रीन बॉल आ जाए या फिर व्हाइट बॉल आ जाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए चलेगा. तो ग्रीन और व्हाइट दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 9 upon 12, so 3 3 9 and 3 4 12. ठीक है. Now in the very next question there is, it is a very interesting question, as look at that, a green and white. तो यहां पर इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इस और एंड का डिफरेंस है. ठीक है, तो देखो यहां पर आप क्या होगा, ग्रीन एंड व्हाइट बॉल, सो नंबर ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो एक बॉल निकालूं और वही की वही बॉल ग्रीन भी हो और व्हाइट भी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ग्रीन एंड व्हाइट मतलब वही बॉल ग्रीन भी हो और व्हाइट भी हो. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट बॉल इज 0, तो 0 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0. नाउ नॉट अ ग्रीन बॉल मतलब ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो P ऑफ नॉट अ ग्रीन बॉल, अब ग्रीन बॉल नहीं होगी तो कौन सी बॉल होगी, या तो वो व्हाइट होगी या रेड होगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो ऐसी बॉल जो ग्रीन बॉल नहीं है वो कितनी है, 7, सो 7 अपॉन 12. ओके, तो यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखेंगे अगर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो फिफ्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन इम्पॉसिबल इवेंट है. ठीक है, एक सिक्स वाला एक क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूं इसमें, सॉरी सेवंथ वाला, एनी बॉल, मतलब आप कोई भी बॉल फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये एनी बॉल के इवेंट को मैं क्या लिख देता हूं, P ऑफ बी, और P ऑफ बी कितना आ जाएगा, N ऑफ बी अपॉन N ऑफ एस. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 12 और अपॉन 12, तो ये कितना आ गया 1. बिकॉज यहां पर क्या हो गया कि, यहां पर क्या हो गया कि कोई भी बॉल आप निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप कोई भी बॉल निकाल सकते हो, तो 12 में से कोई भी बॉल आपके पास आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है. तो ये आपका फिक्स्ड इवेंट हो गया, या फिर आपका सर्टेन इवेंट हो गया है ना, ये इवेंट होगा ही सही. क्लियर है सभी को यहाँ पे? So question which are asked in exams related to probability. Okay, तो probability के क्वेश्चन जो है उनको क्लासिफाई कर देते हैं. कैसे देखते हैं. सबसे फर्स्ट जो होता है वो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. कॉइन में भी अगर सब क्लासिफाई करे तो 1 टॉस या वन कॉइन, 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स. ठीक है, 3 कॉइन्स तक मैक्सिमम वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर 10th क्लास में. फिर कॉइन्स के बाद बात करें अगर, तो डाइस, तो डाइस में भी सिंगल थ्रो और डबल थ्रो है ना, मतलब एक बार आप डाइस थ्रो कर रहे हैं और 2 टाइम्स आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, या 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, एक ही बात है. ठीक है, देन इसके बाद कार्ड्स पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, देन आगे मिसलेनियस या एक्स्ट्रा जो भी आप बोले, इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मेन ये 3 कैटेगरी होती है मेनली, कॉइन, डाइस और कार्ड्स की. इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो कॉइन्स की सबसे पहले अपन बात करते हैं. कॉइन्स, 1 कॉइन्स की बात करें अगर अपन, तो कॉइन्स में सबसे पहले 1 कॉइन लेता हूं मैं. तो 1 कॉइन अगर आपके पास है ना, तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सभी को पता है. तो सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस
क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो H और T आपके आउटकम से इनको कलेक्ट कर लिया एक ब्रैकेट में, है ना। आपको ये ब्रैकेट ही बनाना है ना, कर्ली ब्रैकेट्स ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए यार, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया, 1 + 1 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो गए। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू टू डू कि यहाँ पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हेन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लाइक क्वेश्चन अगर ये हो गया, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इसमें दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, अ हेड और सेकंड हो जाएगा अ टेल। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, अ हेड मतलब आपका इवेंट जो है वो है हेड आना, इवन इवेंट क्या है, हेड आना। तो नंबर ऑफ इवन इवेंट कितने हो गए, 1। ठीक है, अ टेल, तो ये E2 इवेंट है, ये टेल आ गया। तो नंबर ऑफ E2 इवेंट ये भी कितने होंगे, 1। ठीक है, अब देखें आप, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S, दैट इज 1/2। ओके, सिमिलरली P ऑफ E2 अगर निकालना है मुझे, तो P ऑफ E2 कितना आएगा, n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S, दैट इज 1/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। मतलब ये कौन से इवेंट है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है ना, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की आउटपुट की जो प्रोबेबिलिटी वो दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, है ना। क्लियर है सभी को। जब भी आप कॉइन की बात करेंगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉइन, the formula for sample is number of sample space. Okay, the formula for number of sample space is 2 to the power n. Okay, the formula for number of sample space is 2 to the power n, where n is equals to number of coins tossed, मतलब कितने कॉइन आपने टॉस किए हैं वो n होगा। अगर आपने एक कॉइन टॉस किया है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 to the power 1 मतलब 2 आएंगे। अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं तो 2 to the power 2 मतलब नंबर ऑफ सैंपल 4 आएंगे। और अगर 3 कॉइन टॉस किए हैं तो 2 to the power 3, तो बच्चे लिखते हैं 6, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा, 2 to the power 3 8 होता है ना। तो 8 सैंपल स्पेस आएंगे, इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो सिंगल कॉइन का केस हो गया, अब डबल कॉइन के केस की बात करते हैं। अगर 2 कॉइन्स टॉस किए, 2 कॉइन्स, ठीक है, तो इसको समझना आप, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ यू टॉस्ड 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली, both are same, या both provides same output। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, तो देखो समझो, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, और सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक। ठीक है, मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे हेड आ गया, वो मैंने लिख दिया। अब दूसरा कॉइन मैंने टॉस किया, उस पे भी हेड आ गया। ठीक है, मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। पहला कॉइन मैंने पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, पहले पे टेल दूसरे पे टेल आ गया। तो यही के यही इवेंट्स आपको कब मिलने हैं, यही के सिंपल आपको कब मिलने हैं, जब आप 2 कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का जो फॉर्मूला होता है कॉइन के केस में, वो 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 कॉइन्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 to the power 2 मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सैंपल स्पेस होंगे वो 4 होंगे। तो 4 कैसे होंगे, देखो तरीका समझ लो एक, तो उससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा। सबसे पहले आप एक कॉइन टॉस करते हो तो हेड और टेल आता है, इसको फिर से लिख दीजिए। अब 2 बार हेड और 2 बार टेल। ओके, तो ये एच ये आपका एक ही इवेंट है ना, इसको 2 इवेंट मत समझना आप, क्योंकि आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो ना, इसलिए ये पूरा एक इवेंट है। इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि इसको आप सिंगल इवेंट काउंट करो।
तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, कोई भी अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed, find the probability of getting first, ठीक है, head on both toss, at least one head, at most one head, ठीक है, no head, exactly one head, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं, इसके अलावा अगर कोई बचा तो मैं आपको करवाता हूं। तो देखो आप समझो, यहां पर इसको इवन इवेंट नाम दे दिया, ये E2 हो गया इवेंट, ये इवेंट E3 हो गया, ये इवेंट E4 हो गया, और ये इवेंट E5 हो गया, ठीक है। तो इवन इवेंट के नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, इवन इवेंट में नंबर ऑफ इवेंट्स n ऑफ इवन, या फिर चलो पहले इसके इवन के इवेंट्स लिखते हैं। हेड ऑन बोथ टॉस, तो दोनों पे हेड आना चाहिए, तो एक ही होगा सिर्फ HH। E2 में क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, अगर 2 हेड भी आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1, तो हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, सब में एटलीस्ट 1 हेड तो है इसमें। अगला एटमोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए, मैक्सिमम 1 हेड, तो एक हेड तो आ ही रहा है हेड टेल में और टेल हेड में। अब यहां पर क्या आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोला, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो वो किस में आएगा, टेल टेल में आएगा। और फिर अगला इवेंट क्या बोला, एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये हेड टेल और टेल हेड। तो पहले ऐसा आप लिख ले तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आप देखें, नंबर ऑफ इवेंट्स इन E1 कितना है, 1। नंबर ऑफ इवेंट्स इन E2 कितने हैं, 3। नंबर ऑफ इवेंट्स इन E3 ये भी 3 है। नंबर ऑफ इवेंट्स इन E4 ये है 1। नंबर ऑफ इवेंट्स इन E5 ये है 2, ठीक है। तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इफ यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 कितना होगा, N ऑफ E1 अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ E1 1 है और N ऑफ S 4 है, तो इसका आंसर 1/4 आ गया। P ऑफ E2, तो P ऑफ E2 में क्या आएगा, N ऑफ E2 अपॉन N ऑफ S। N ऑफ E2 3 है और N ऑफ S 4 है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, P ऑफ E3, तो N ऑफ E3 3 है और टोटल 4 है। नाउ P ऑफ E4, तो ये 1 है और अपॉन में 4। P ऑफ E5, तो E5 कितने हैं, N ऑफ E5 2 और अपॉन 4, मतलब 1/2। तो ये ऐसे आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी।